Okay, so that was Soumya Swaminathan of the World Health Organization. Let's turn to the other big story, and that is the standoff that continues now for more than 4 weeks between the Modi government and the farmers' unions. Today, the farmers' unions once again made it clear they want a repeal of all the farmer laws before they come back to the dialogue table. They are not amenable to any amendments to the existing law. All of this also taking place, remember, on today, which is Kisan Divas, where the Modi government said that they will increase the funding to farmers across the country. Take a look at all that happened. Centre's olive branch to resume talks with agitating farmers did not yield results as farmers continue to play hardball. Farmers termed Centre's letter an attempt to discredit their movement and demanded that the government come back with suggestions. We urge the government not to repeat those meaningless amendments which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. As the standoff continues, Centre made another attempt to reach out to the farmers. मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है. But farmers are adamant. Farmers say that they will forcibly halt toll collections on Haryana highways from 26th to 28th December. On Tuesday, some farmers wrote a letter to Prime Minister Modi in blood. And you can see there are many letters and messages which has been written to Prime Minister Narendra Modi and to the government. For example, there is one such message, Kale Kanun Wapis Lo. There is a second message, we reject black laws. There is a third message, I reject black laws, please take back. At one point of time, they are donating blood, but the second point of time, they are also using the same blood to write letter to show their protest and anger to the government, to the Prime Minister Narendra Modi. BJP too jumped in to allay farmers' fears. नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी जो कि मुख्य सेवक हैं हिंदुस्तान को, वो किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं. अन्नदाता और भगवान हैं तभी हिंदुस्तान है. With Mausami Singh in New Delhi, Bureau Report, India Today. And remember, as I said, today is Kisan Divas, the birth date of the former Prime Minister Chaudhry Charan Singh. Well, taking forward his legacy this time in these protests is the Bharatiya Kisan Union. I spoke to Rajesh Tikait, the son of Mahendra Singh Tikait, who was the last to stage a protest 32 years ago. Listen in to my interview with him as part of our Ground Zero series on what's happening on the ground. दो सवाल आपसे पूछने थे. पहला तो ये कि ये बताइए, ये आंदोलन एक तरह से 32 साल पहले आपके पिताजी ने एक आंदोलन छेड़ा था बोट क्लब पर. उस आंदोलन और इस आंदोलन में फर्क क्या है? तब एक बहुत बड़ा आंदोलन बना था, महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था. क्या अगली पीढ़ी भी उसी तरह का आंदोलन करने जा रही है? नहीं, हमने तो तब राजीव गांधी थे, अब नरेंद्र मोदी जी हैं. हमने ये कहा है कि इस घर में कोई भी जन्म लेगा टिकैत परिवार में, आने वाली पीढ़ी भी तो देखभाल का जन्म लेना, उसको आंदोलन में जरूर जाना पड़ेगा.
आने वाली पीढ़ी जो भी इस घर में जन्म लेगी, हाँ। टिकैत खानदान में जन्म लेगी, तो उसको आंदोलन में जाना पड़ेगा। ये तो विरासत में मिला हुआ है, 1200 साल से यही तो काम कर रहे हैं। यानी विरासत का में भी आंदोलन मिला हुआ है। आंदोलन 1200 साल से मिल रहा। लेकिन ये बताइए, सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं वो आपकी बातचीत से करना चाहती है। क्या कानून रास्ते पर, सड़क पर बन सकते हैं इस तरह से? अच्छा, उन्होंने कभी आंदोलन नहीं करा? उन्होंने जनता को भगा के मंदिर तुड़वाया, मस्जिद तुड़वाया, वो भी तो आंदोलन नहीं था। पर कानून बनता है संसद में, सड़क पर नहीं बनता। तो अगर सड़क पे आ गए लोग तो अब कानून संसद में बनने लगा। इन्होंने नारे नहीं दिए कि सड़क से संसद तक का एक ही मार्ग है। हमें तो यही सिखाया है उन्होंने। क्या बीजेपी वालों ने कभी आंदोलन नहीं करे? क्या ये बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं करते? अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है, किसान अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, सरकार कह रही है आप बहका रहे हैं, विपक्ष बहका रहा है, सरकार गुमराह कर रहा है लोगों को। मिले नहीं विपक्ष वाला तो कोई यहाँ पे आया नहीं। कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ना। आज आए कद्दा घूमता है, टेंट नहीं लग रहा किसी का। यहाँ ना रात कुछ होता देखा हमने। मिले नहीं, कहीं मिलेंगे तो बताइयो। तो जो हो रहा है, क्या आप समझते हैं एक तरह से ये लोगों ने अपने आप ये तय किया है, किसानों ने, कि ये कानून जाने हैं? ये उस मास्टर की तलाश में यहाँ पे आए। खेत में लागत बढ़ गई, जो खेत में फसल पैदा हुई वो आधे रेट में बिकी और आमदनी दुगनी होगी। उस मास्टर से मिलवा दो जो गणित का मास्टर है, जिसने ये फार्मूला निकाला, हमको भी उससे मिलवा दो। उसकी तलाश में हम यहाँ पे आए। नहीं, कहीं ना कहीं क्या आप एक तरह से मोदी सरकार को घेरने की बात है कि मोदी जी को एक तरह से टक्कर देने की बात है, या केवल ये किसानों की हित की बात चल रही है? नहीं, तो जो सरकार में शामिल है, मोदी जी सरकार में शामिल है और सरकार में शामिल है। हमारा ये है कि जो भी सरकार में शामिल होगा, हमारी लड़ाई उससे है, किसी पार्टी से नहीं हमारी। और आपकी लड़ाई कानून को हटाने की है, और उसमें कोई संशोधन होने से क्या कच्चा पक्का नहीं बनाएंगे, बढ़िया बिल बनाएंगे, फिर सब लोग मिल के मजबूत बनाएंगे बिल। मतलब फिक्की सभागार में मीटिंग हो रही है। हाँ। व्यापारियों को कह रहे हैं कि किसानों का कानून जो बनाया ये बहुत बढ़िया है, तैयारी करो। मतलब फायदा किसानों को होगा, बता रहे व्यापारियों को। ये गणित समझ में नहीं आया। नहीं, कहीं ये डर है आपको? क्या है, अगर अंबानी, अडानी या कोई भी व्यापारी आए, क्या डर है? ना, हमें तो नहीं डर। तो फिर आने दीजिए। हम क्या मैंने कर रहे हैं उनको? किसने मैंने करा? कहीं ना कहीं मैं जब सुनता हूँ कि ये कानून अगर आएगा तो मंडी खत्म हो जाएगी, प्राइवेट प्रोड्यूसर आ जाएंगे, ये डर फैला रहे हैं आप। हमने ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फसलों के रेट तय जहाँ होते हैं, ये तो करेगी ना जो भारत सरकार। ये आप कानून में चाहते हैं? ये रेट तय कर दिए कि उसके कम पे कोई भी आवे वो खरीद ना करे। ये आप कानून में चाहते हैं? कानून में चाहते हैं। कानून बनेगी, उनकी धाराएं बनेगी, उसके कम पे कोई खरीद देगा, उसकी सजा का प्रावधान होगा। और ये आंदोलन चलता रहेगा? और आंदोलन कहाँ जा रहा है? ये कमजोर नहीं होगा, बट नहीं जाएगा? कहाँ बटेगा? नहीं बटेगा। नहीं, कहाँ बटेगा? ये कहते हैं कि आप केवल पश्चिम यूपी और पंजाब हरियाणा तक सीमित है, क्या कहेंगे? और दिल्ली का इलाज ही तो करेगा, पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब ही तो। दिल्ली का इलाज तो यही तो करेगा। अरे सब आ रहा है, पूरा देश का किसान आ रहा है। आखिर में मैं पूछूंगा, आज चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, क्या कहेंगे उस जमाने और आज के नेताओं में फर्क? उस टाइम पे हमारे जो बाप दादा थे, उनको तो खेत में जंगल तोड़ने में लगा रखा कि आप तो हल चलाओ, अन्न उपजाओ। ये तो अब आगे इन्होंने हिसाब किताब छाट के रखा, वो कॉपी ठाई, उनने कहा आगे तो घाटे की खेती कर रहे। हम तो अपना हिसाब किताब लेने आए। 1967 में पहली बार एमएसपी लागू हुई। 76 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव रखा, भारत सरकार ने रखा, मान लिया हमने। मास्टर की जो सैलरी थी वो 70 रुपया थी। एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं आता था। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। भट्टे की जो ईंट थी वो 1 क्विंटल गेहूं में 2500 आती थी। हम तो हिसाब किताब लेने आए, हमारा वो दे दो। 1 क्विंटल गेहूं में 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। सरकार कह रही है कि नेतागिरी चल रही है। अच्छा, कहाँ चल रही? नेतागिरी चलती तो हाउस में रहते। टिकैत जी,
टिकैत जी अब नेता बनना चाहते हैं ये आंदोलन को लेकर एक बार और फिर वे बन लो ना, जिसके पास में भाई इतनी 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 पब्लिक है तो भाई इकट्ठा कर लो उनको। तो कहीं ना कहीं वोट ये आखिर में पूछूंगा कि ये आंदोलन महीनों पर महीनों चलने के लिए आप तैयार है जब तक ये कानून वापस ना हो? इस पर कोई समझौता नहीं होगा ना? घर वालों ने मैंने कर दिया कि हार के घर तो आना नहीं, हार का घर नहीं आना। भाई कौन याद भी है कि मुझे 108 दो के जो हार लेके गांव जाना चाहता हो वो ये पट्टा 1000 साल जीवन रहने का पट्टा लेकर आए। तो आप ये यहाँ 70 साल से ये हार मारकर आप नहीं जाना सवाल ही नहीं उठता है। कोई नहीं जाएगा। ये आंदोलन अलग तरह का आंदोलन है। ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। ये उस गरीब दुकानदार का आंदोलन है जो नुक्कड़ पे बैठ के और 100 परिवारों को उधार सामान देता था। ये तो आंदोलन उसका है। ये तो आंदोलन उसका है ना, उस दुकानदार का भी आंदोलन, उस मजदूर का भी आंदोलन है। ये जब हम हमारे खेत में 30-40 साल पहले काम करता था तो 50 दिन मजदूरी करके हम उसको 50,000 रुपए देते थे। 1,000 रुपया किसान देता था, 5 किलो अनाज उसको देता था। वो 50 दिन में 1 तोला सोना खरीद सकता था आज के हिसाब से। तो ये तो आंदोलन उसका। सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए? सरकार तो मिली नहीं। 7 साल में सरकार मिली 5 दिन के लिए। सरकार फिर 8 तारीख से गायब है। उसी की तो तलाश में है सरकार की, उसी को तो ढूंढ रहे सरकार को। कृषि मंत्री ने आपको चिट्ठी लिखी है, आपको कई सुझाव दिए हैं, तैयार है कि नहीं? क्यों नहीं जाते बात करने के लिए? कहाँ पे जाएं? आप चाहते वो यहाँ आए? नहीं, हम तो वहीं जाएंगे, लेकिन बताओ तो कहाँ? जिसके घर आए वो बताएंगे ना कौन से मकान में छुपाया बैठा है, वहीं तो जाएंगे हम। बताएं। और ये आप कह रहे हैं कि एक बात साफ है कि कानून रद्द होने चाहिए, संशोधन से आप संतुष्ट नहीं रहे? ये कानून रद्द करेंगे। ये जो कहावत है ना, 100 जूते भी खाऊंगे और 100 प्याज भी खाऊंगे, तो चीज करेंगे। ये इसमें भी वोट ढूंढ रहे हैं। कर दो, लेकिन ये कर दो, हम तो धन्यवाद करेंगे भैया, हमारा काम कर दो, इन्हीं का धन्यवाद करके जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस कानून से टिकैत साहब आपकी? MSP इस कानून से बाहर रखा, कानून बना दिया। कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे, तो यही हमें दिक्कत है। भंडारण के मकान बनवा दिए, कानून बाद में बना, तो इसका मतलब पार्लियामेंट और PMO तक व्यापारी आ गया है, तो इस व्यापारी को नहीं आने देना हमको। यानी आपको लगता है इस कानून से व्यापारी राज होगा? व्यापारी तो राज होगा, किसान राज नहीं होगा ना। आप बड़े ये लगते हैं, श्योर लगते हैं कि आपकी बात मानी जाएगी। मोदी जी आसानी से नहीं मानते। और हम कहाँ कह रहे आसानी से मानने। भाई कुश्ती तगड़े से लड़ेंगे तो जब भी तो ठीक होगा। अगर हार भी जाए तो ये तो कहेगा भाई बड़ा काम था, हार गए। हम कहाँ कह रहे हैं? ये लड़ाई है कुश्ती की, यानी हाँ कुश्ती की है। बड़े के पेंगनी फंसा लो, घोड़ा लाठी दे रखी। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.